गीता के जो श्लोक है हाँ। वो संस्कृत में याद नहीं होते। Student, I am unable to remember the shlokas of the Gita in Sanskrit. गीता के श्लोक याद नहीं होते हैं तो गीता के श्लोकों के अर्थ याद करो। Baba, if you aren't able to remember the shlokas of the Gita, remember their meanings. अर्थ तो हिंदी में है ना। The meanings are given in Hindi, aren't they? जब अर्थ याद हो जाएंगे तो उनके भावार्थ को समझो। When you remember the meanings, understand their implied meaning. जब भावार्थ समझ में आ जाएगा, अर्थ समझ में आ जाएंगे, शब्दों के अर्थ मालूम हो जाएंगे तो श्लोकों की संधि विच्छेद करना सीखो। When you understand the implied meanings, when you come to know the meanings and the word meanings, learn the Sandhi Vichhed of those shlokas. Sandhi Vichhed means separating the combination of the final letter of a word with the initial letter of a following word. गीता में एक एक शब्द का संधि विच्छेद दिया हुआ है। The Sandhi Vichhed of every word is given in the Gita. शब्दों को अलग अलग करके दिया हुआ है। The words are given separately. उस अलग अलग शब्द का अर्थ सीखो। Learn the meaning of those separate words. फिर बाद में श्लोक याद करो। Then remember the shlokas later. संस्कृत में तो इसे याद करना काफी कठिन लगता है। कोई के लिए सहज लगता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी हैं जो अध्याय के अध्याय उन्होंने याद कर लिए। Student, but we find it very difficult to memorize them in Sanskrit. Baba, some find it easy. There are small children like this as well who have memorized many chapters of the Gita. तो अपने अपने पूर्व जन्म के संस्कार हैं। So, they have their own sanskars of the previous births. किसी के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, किसी के संस्कार कैसे पड़े हुए हैं। Some have these sanskars and some have some other sanskars. किसी के संस्कार हैं गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के ढेर सारे महावाक्य सुनाते रहते हैं। Some have such sanskars that they keep narrating many great sentences of the Vani, that is words narrated of Guru Granth Sahib. जैसे कि हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ना बेकार है हिसाब से। वो पढ़ने से वो पढ़ना अच्छा है कि बेकार है? जैसे कि दुनिया को तो समझाना है ना ज्ञान को। जो गीता का क्लैरिफिकेशन है वो आध्यात्मिक विद्यालय से आ रहा है या किसी दूसरी संस्था से आ रहा है। Student, we are reading the Srimad Bhagavad Gita, aren't we? Is reading it a waste? Baba, reading it is. Student, is reading it worthwhile or a waste? We need to explain the knowledge to the world, don't we? Baba, is the clarification of the Gita being given by the Adhyatmik Vidyalaya or by some other institution? Students, the Adhyatmik Vidyalaya. है और आध्यात्मिक विद्यालय की स्थापना भगवान करते हैं या कोई मनुष्य करते हैं। And does God establish the Adhyatmik Vidyalaya or does some human being do it? है तो जो गीता है आध्यात्मिक विद्यालय से निकाली हुई, उस गीता का क्लैरिफिकेशन स्वयं भगवान देता है मुकर्रर रथ के द्वारा या कोई दूसरा दे सकता है। Student, God does it. So, does God himself, through the permanent chariot, give the clarification of the Gita published by the Adhyatmik Vidyalaya, or can someone else give it? भगवान ही दे सकता है। Only God can give it. हाँ, तो कहना क्या है? Yes, so what are you asking? कहना है कि ये हिसाब से शासक कुछ भी हो, जैसे कि पहले होने वाले कोई भी श्लोक ऐसे आए तो पढ़ना ठीक नहीं है कि ठीक है? Student, what I am asking is, keeping that in mind, is it bad or good to read shlokas or any scripture for tallying it with the knowledge or not? शास्त्रों का श्लोक पढ़ना ठीक नहीं है। Baba,
it isn't right to read the shlokas of the scriptures. लेकिन सबसे पुराना शास्त्र कौन है दुनिया में? But which is the oldest scripture in the world? गीता। The Gita. कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज, Everything in the world, be it anything in the world, पहले पहले सात्विक होती है 100% या तामसी होती है? is it 100% sattvic or tamsi in the beginning? Students, it is sattvic. तो जब व्यास ने वो श्लोक रचे थे, So, when Vyas composed those shlokas, तो वो सात्विक थे, were they sattvic? जो संसार में आज भी सर्वधर्म वाले मानते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता मानते हैं कि नहीं? The people of all the religions of the world acknowledge it even today as the Srimad Bhagavad Gita, the crown jewel of all the scriptures. Do they or not? ज्ञान का दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ दूसरे धर्म वाले किसको मानते हैं? The most elevated scripture of knowledge in the world. Which scripture to the people of the other religions considered to be the most elevated? है? कोई मानते हैं, कोई बाइबल मानते है? हैं, कोई मानते हैं, कोई बाइबल। बाइबल को मानते हैं श्रेष्ठ। Student, some consider it to be the Quran, whereas some others consider it to be the Bible. Baba, do they consider the Bible to be elevated? दुनिया नहीं, श्रेष्ठ तो हम तो ये तो धर्म तो गीता ही मानते हैं, लेकिन दुनिया वाले विधर्मी वाले जो होते हैं क्रिश्चियन नहीं, Student, our religion considers it to be the Gita. But the worldly people, the Vidharmis like the Christians etc. consider it to be the Bible. Baba, no. सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाएं कौन से ग्रंथ की हुई हैं अलग अलग भाषाओं में? क्यों? Which scripture has been interpreted the most in various languages in the world? Students, the Gita. Why? क्या दरकार पड़ी है? हाँ, What was the need of it? Student, it is the crown jewel among all the scriptures. Yes, सर्वशास्त्र शिरोमणि है। it is the crown jewel among all the scriptures. मान्यता है सब धर्मों में, सभी भाषाओं में, इसलिए तो मानते हैं। It is acknowledged in all the religions and languages. This is why it is considered the crown jewel. तो इससे साबित हुआ कि व्यास ने जब वो श्लोक रचे थे तो उनका अर्थ, सही अर्थ उस समय व्यास बता सकता था या आज के दुनियावी विद्वान बता सकते हैं जिन्होंने 108 से भी ज्यादा टीकाएं लिख रखी है। So it proves, when Vyas wrote those shlokas, could he have explained their meaning, their correct meaning, or can the worldly scholars of today, who have written more than 108 commentaries on it, explain them? इसलिए कहावत है, कै समझे कवि या समझे रवि। This is why the saying, either the poet or the sun can understand it, has been coined. इससे क्या साबित हुआ? What does it prove? व्यास का क्या पार्ट हुआ? What is Vyas's part? बाबा ने बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो व्यास का पार्ट क्या हुआ? Baba has said, there is nothing which is everlasting in this world. Only one Shiv Baba is everlasting. So what is Vyas's part? अरे बोलो ना। प्रजापिता, प्रजापिता जो है वो ही शिव बाबा के समान हो गया। इसलिए शिव का नाम किसके साथ जोड़ा था? दुनिया में कोई और 500 करोड़ आत्मा में से है, 700 करोड़ में से, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए? Array, speak up, won't you? Student Prajapita. Prajapita. Prajapita himself becomes equal to Shiv Baba. This is why, with whose name is the name of Shiv combined? Students, Shankar.
Is there any of such soul in the world among the 5 to 7 billion souls whose name is combined with that of Shiv? है नहीं। इससे साबित हुआ कि शिव आते हैं तो विरुद्ध लाते हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके जाऊंगा। Student, no. No. This proves when Shiv comes, he promises, I will make you children equal to myself number-wise before going. तो 100% आप समान कोई बनता है या नहीं बनता है? बनता है। So does someone become 100% equal to him or not? अरे बोलो भाई, अरे उसको बोलने दो। Arey, speak up, brother. Other students, he does. Arey, let him answer. बनता है बाबा, बनता है। हाँ, जब बनता है तो कौन हुआ? भारत हुआ जो ज्ञान में रत रहता है, या कोई दूसरा मनुष्य हुआ? Student, he does, Baba, he does. Yes, when he does, who is it? Is it Bharat who stays engaged in knowledge, or is it some other human being? भारत ही हुआ। भारत ही हुआ। Student, it is no doubt Bharat. It is no doubt Bharat himself. बाबा का डायरेक्शन है कि श्लोक पढ़ना है, पढ़ाना है। वो कहीं कहीं मधुबन में श्लोक नहीं पढ़ाया जाता, तो श्लोक हाँ, यानी कि आज में भी गीता के अर्थ बैठ करके बताते यज्ञ के आज में। Student, it is Baba's direction to learn and teach shlokas. In some Madhubans, shlokas aren't taught. So, Baba, even in the beginning of the yajna, the meanings of the shlokas of the Gita were narrated. तो जो आज में वो अंत में भी होगा। So, what happened in the beginning will happen in the end as well. नहीं, बाबा पूछना क्या है, और जो माने बाबा का डायरेक्शन है कि श्लोक हर मधुबन में पढ़ाया जाए, परंतु कहीं कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो उसकी शूटिंग क्या होगी? Student, no Baba, the question is, it is Baba's direction to learn and teach shlokas in every Madhuban. But it isn't taught at some places. So, what will be its shooting? श्री धर्म की आत्माएं होंगी, क्यों पढ़ाएंगी? If they are the souls of the other religions, why will they teach it? जो बाइबल को मानने वाले होंगे, जो कुरान को मानने वाले होंगे, या दूसरे धर्म ग्रंथों को मानने वाले होंगे, वो गीता में क्यों जोड़ देंगे? Those who believe in the Bible, who believe in Quran or in the other religious scriptures, why will they put emphasis on the Gita? दुनिया लोगों को मालूम ही नहीं है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। They don't even know that the Gita is our religious scripture. दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़े लिखे हैं, कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। There is this impression in the world, in the educated ones among the Christians, there isn't as much knowledge in our Bible as there is in the Gita. अंग्रेज लोग और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है, उसमें जितना गहराई ज्ञान है रूह का, उतना गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं है। It is there in the intellect of the Muslims and the Islamic people that the extent to which there is deep knowledge of the soul in the Gita, which is the religious scripture of Bharat, there isn't so much deep knowledge in the Quran. तो सारी दुनिया लोहा मानती है आज गीता ज्ञान का। So, the entire world accepts the superiority of the knowledge of the Gita. अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है। Now, the knowledge of the Gita is very popular in Hindustan, India. ज्यादा लोगों को ग्रास्प हो सकता है।
Many people can grasp it. तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? So, when the service of the entire world starts, on the basis of which holy book will you be able to explain to them? वो उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है कि भगवान आया हुआ है। It isn't there in their intellect that God has come. तुम बोल रहे हो कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। You are saying that God has come and he is narrating the knowledge of the Gita. तो टैली करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्रों के ऊपर है ना। To tally it, they have faith on religious scriptures, don't they? और ये भी मान्यता रही है ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की, भले भगवान उतर आए लेकिन हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। And this has also been a belief of hermits, monks and scholars. Even if God himself descends, we won't give up the scriptures. तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? So which scripture is it that they won't give up? उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। You will have to understand, explain based on that scripture. इसलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो गीता के श्लोकों के आधार पर किसी को समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। That is why, if you want to become serviceable, do the service of the entire world, then if you explain to someone on the basis of the shlokas in the Gita, it will sit in their intellect. ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं। This is the most superior book in the world. It has been interpreted the most. बाइबल की और कुरान की इतनी टीकाएं नहीं हुई। The Bible or the Quran hasn't been interpreted so much. गुरु ग्रंथ साहब की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई हैं, उनमें सच्ची कौन सी है? The Guru Granth Sahib hasn't been interpreted so much. So, among the numerous interpretations of the Gita, which is the real one? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है। All the interpretations contradict each other. ज्ञान के पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं। The points of knowledge cross each other. तो वो मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है, वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से अर्थ समझाएगा। तुलसीदास ने लिखी रामायण। So, it is believed that the poet who wrote the poem, the deeper he explains the meaning of it after coming, Tulsidas wrote Ramayana. वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी। Valmiki wrote Valmiki Ramayana. तो वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी, दूसरा कोई समझा सकेगा? Will anyone else be able to explain it as deeply as the soul of Valmiki can? समझाएगा? फिर Will anyone explain? Student, no. Then, व्यास ने व्यास के प्रसाद से हमको गीता के श्लोक मिले। तो अब वो व्यास वाली आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। वो ही व्याख्या तो सच्ची होगी। Vyasa Prasadat. That is, we received the knowledge, shlokas of the Gita with the joy of Vyas. Now, the soul of Vyas himself should become instrument to narrate it, to interpret it, to clarify it. That very interpretation will be the correct one, won't it? तो प्रजापिता वाली आत्मा वही व्यास की आत्मा होगी। So, the soul of Prajapita himself is the soul of Vyas, जिसका नाम भारत पड़ता है। who is named Bharat. भा माने ज्ञान की रोशनी है, रत माने लगा रहने वाला। Bha means the light of knowledge and Rat means the one who remains engaged. आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। सत्युग में प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी में, आत्मिक स्थिति में, द्वापर युग से
स्थूल रूप में शास्त्र लिखता है। He is engaged in the light of knowledge from the beginning till the end. In the golden age, he is engaged in the light of knowledge in practice, in soul conscious stage. And he physically writes scriptures from the copper age. बाद में उस जो वेदवाणी निकली उसके जो व्याख्या करता है, उपनिषद बनते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने। Later, he gives the clarifications of the Vedvani, the Upanishads, Shatpat Brahmin, Aranyak are made. बाद में ये शास्त्र बन गए, पुराण बन गए। Later, scriptures and Purans were made. तो ये भी लिखने वाला कौन है? So, who is the one who writes them as well? सात्विक रूप में लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। He starts writing them in the pure form and later like Ramayana, just like Baba says, it becomes something like novels. तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला हुआ ना जन्म जन्मांतर। So, he is the one who remains engaged in the light of knowledge birth after birth, isn't he? कभी प्रैक्टिकल में, कभी शास्त्र के आधार पर। Sometimes in practice and sometimes by writing scriptures. तो गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, उस गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा के महावाक्य सुनाना, ये असली चीज है। So, to give more importance to the Gita, to understand and narrate to others the great sentences of Baba based on the Gita, saying this is the real thing. जैसे धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, कोई ग्रंथ लिख करके थोड़े ही दिया धर्म पिताओं ने। For example, the religious fathers came and narrated orally. They certainly didn't write any scripture and give it to their followers. क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? Did Christ write the Bible? इब्राहिम मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या? Did Abraham or Muhammad write the Quran? वो तो बाद वालों ने लिखी है। Students, no. The ones who come later wrote them. उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया। Whatever the religious fathers narrated, they did through the mouth, didn't they? तो ऐसे ही भगवान जो अभी सुना रहा है वो मुख से सुना रहा है। So similarly, whatever God is narrating now, He is narrating it through the mouth. और ये जो गीता है, जो मनुष्य लिख लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं, वो मनुष्यों को लिखा हुआ है। And the Gita that human beings write and publish are written by the human beings. भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? What is the necessity for God to make or read scriptures? तो लोगों को विश्वास बैठेगा ना कि गीता में जो बातें चली आ रही हैं 2500 साल से, So people will have the faith, won't they? Whatever is mentioned in the Gita for the past 2500 years. तो बाबा तो निष्कर्ष गीता के श्लोक तो सब छोड़ चुके हैं। So everyone has neglected the shlokas of the Gita. कोई गीता नहीं पढ़ता अभी। Nobody reads the Gita now. रामायण फिर भी पढ़ते हैं। They still read the Ramayana. तो जो असली चीज है वो तो शास्त्रों में भी असली चीज गीता ही है ना। Even among the scriptures, it is the Gita that is the real thing, isn't it? वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता लिखी गई। Baba has said that the Gita was written even before the Vedas. तो जो गीता के श्लोक हैं वो याद होने चाहिए ना, इसलिए चलाए गए हैं। So the shlokas of the Gita should be memorized, shouldn't they? That is why they are being played. कि रोज रोज सुनेंगे तो कुछ न कुछ याद ही हो जाएंगे। ठीक। If you listen to them every day, you will somewhat learn them by heart.
Student, okay. माना एक आध दिन वो चला, मैंने गैप कर करके, जैसे एक दिन वो चला दी। What if we play them alternative days? आपको नहीं इंटरेस्ट है नहीं, तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। नहीं, इंटरेस्ट तो है। आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना। If you don't have interest, you can read it, the Gita, separately. Student, I have interest. You are somewhat educated, aren't you? मगर तो वो किताब- ऑडियो नहीं सुनी ना बाबा। जो ऑडियो आपने नहीं सुने हैं वो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, पुराने ऑडियो शाम को। Student, but I have never listened to the audios. The old audios that you didn't listen are being played in the evening class, aren't they? सुनो, Then listen to them. और ये नियम जो है ना हर मधुबन में कर दिया कि सुबह ऑडियो नहीं चलाना, इसलिए बात ये है कि जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके 3 विभाग हैं। एक न्यायपालिका। Another student. This rule has been applied in all the Madhubans that the audio shouldn't be played in the morning. That is why the thing is that there are 3 divisions in the government that is functioning in the world. One is the judiciary. एक विधान पालिका। The other is the legislative assembly. एक कार्यपालिका। And the third is the executive assembly. तो अलग अलग नियोजनों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए। कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध हाथों शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका होगी। The ones administrating in the various mini Madhubans belong to the executive assembly. They work, they explain the knowledge, give food, give pure food made by pure hands, they give knowledge. This is the executive assembly. अब विधान पालिका है। Then there is the legislative assembly. विधान कौन बनाता है? Who makes laws? ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। Do this, do that, do this way, do that way. ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ा ही करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। If they have made some method to administrate according to the direction of God, you shouldn't oppose it. You should follow it. अपोज करने से क्या फायदा? ऐसा क्यों है? 4 बजे क्यों अव्यक्तवाणी चलती थी, वो क्यों बंद कर दी? What is the benefit of opposing it? Saying, why is it this way? Why has the Avyaktvani played at 4 o'clock been stopped? व्यक्तवाणी क्यों बंद कर दी? ऑडियो क्यों बंद कर दिया? Why has the Avyaktvani been stopped? Why is playing audio cassette stopped? वो सुना नहीं ना। पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना, संस्कृत वाली गीता का। The clarification of the Gita, the Sanskrit Gita, wasn't given so much earlier, was it? अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया ना हिंदी में, श्रीमत के अनुकूल। Now, the clarification of the Sanskrit Gita, according to Srimad, has in fact come up in Hindi, hasn't it? तो उसका महत्व तो ज्यादा बढ़ गया। So, its importance has increased. अब महत्व तो बढ़ गया लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर असर तो तब पड़ेगा ना। घड़ी घड़ी हम जो बात बोलेंगे, ये बाबा ने जो बात बताई है गीता में भी लिखी है, उनको विश्वास नहीं होगा। Now, the importance has certainly increased, but it will have an effect on people in practice when, every moment, when we say that the concept that Baba has said has also been written in the Gita, they won't believe it. आप इस श्लोक का सुना देंगे, देखो गीता का ये श्लोक है, तो उनको ज्यादा निश्चय बढ़ गया, बात सही है। But if you narrate the shloka saying,
Look, this is the shloka in the Gita. They will have firm of faith that the concept is true. पंडिताई का असर बैठ जाता है। There is the influence of Panditai, scholarship. तो इसलिए गीता सवेरे को चलाई जाती है, शांति के टाइम सबको सुनने को मिलेगी, तो कुछ न कुछ गीता के श्लोक याद ही हो जाए। That is why the Gita is played in the morning hours when it is peaceful, so that everyone gets to listen to it. And they will also memorize the shlokas of the Gita to some extent. अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको याद नहीं होगी। Now, if someone isn't interested, they won't be able to memorize them. मुरली की सुनी हुई बातें हैं और वो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, दुनिया वाले। No one, no worldly person wants to listen to the topics that we listen in the Murlis. दुनिया वाले सुनना चाहते हैं तुम्हारे बाबा की मुरली, फिर Does anyone in the world want to listen your Baba's Murli? Then वो तुम्हारे तक सीमित रहेगी। it will be limited to you. इस दुनिया के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य और जहीन लोग जो हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, The great learned men, scholars and teachers, intellectual people of this world, उनकी शास्त्रों के ऊपर इतनी श्रद्धा बैठी हुई है कि उनको शास्त्रों के आधार पर समझाएंगे तब समझेंगे। have so much faith in the scriptures that will they understand when we explain to them on the basis of the scriptures. या तो मुरलियों की बातें सुनाएंगे, बाबा ने ऐसे बोला वैसे बोला वैसे बोला, तो मानेंगे? Or will they accept if we narrate the topics of the Murlis saying Baba has said this, that? नहीं मानेंगे तो क्या करना पड़े? They won't accept. So what should we do? हैं? दुनिया का हर धर्म में जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ है वो कौन सा है? Which book is accepted in every religion in the world? गीता। The Gita. तो गीता को ही लेकर के हम कोई भी व्यक्तियों को समझा सकते हैं। So we can explain to any person through the Gita. क्या? What? गीता में जो बातें आई हैं उनके आधार पर समझाएं। You should explain on the basis of the topics that are in the Gita. गीता हमारा ग्रंथ है। The Gita is our book. सभी धर्म ग्रंथों का माई बाप है। It is the mother and father of all the religious books. सर्वोपरि है। It is above all. दुनिया में एक ही ग्रंथ है, In the world, there is only one book, एक ही शास्त्र है, only one scripture, जिसके ऊपर लिखा रहता है श्रीमद् भगवत गीता। on which it is written Srimad Bhagavad Gita. क्या? What? कैसी गीता? What kind of Gita? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत है। It is the direction of the most elevated one. बुद्धि है, अकल है उसमें, There is his intellect, intelligence in it. और जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है वो है भगवान। And the one who is the most elevated is God, Bhagwan. तो भगवत गीता, So, it is the Bhagavad Gita. उस भगवान की गीता है। It is the Gita of that God. उस गीता को हम रेफर जरूर करना सीख लें, We should definitely learn to refer to that Gita. क्योंकि आगे आने वाली जो दुनिया है उसमें सब धंधों में चौपटा हो जाएगा। It is because in the coming world, all businesses will be ruined. क्या बोला है? What has been said? सब धंधे, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। There is loss in all businesses except the one divine business. तो नुकसान ही उठाते रहना है। So, should we just keep incurring a loss? हैं? Student, no. खुश रहेंगे फिर? Then, will we remain happy? नुकसान उठाते रहेंगे दुनियावी धंधे करते करते, If we keep incurring a loss doing the worldly business, तो आत्मा खुश रहेगी? will the soul remain happy? ज्ञान में चलते चलते मौज में रहेंगे? Will we remain in joy while following the path of the knowledge? रहेंगे? Will we? मौज में नहीं रह सकते। We can't remain in joy. और यहाँ शूटिंग पीरियड में मौज में नहीं रहेंगे तो 5000 वर्ष में भी क्या हो जाएगा? And if we don't remain in joy here in the shooting period, what will happen in the 5000 years as well? है? हम उतना ऊंचा पद के मौज में नहीं रहेंगे सत्युग त्रेता में भी। We won't remain in the joy of a high status,
so much in the golden and silver age either. और द्वापर कलयुग में भी तो दुख होता ही है। And certainly there is sorrow in the copper and iron age. वहाँ तो दुखी हो ही जाएंगे फिर। Then we will definitely become sorrowful there. क्योंकि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। It is because on the basis of the 21 births, there are the accounts of the 63 births too. जो शूटिंग पीरियड में होगा वो ब्रॉड ड्रामा में भी होगा। Whatever takes place in the shooting period will take place in the broad drama as well. शूटिंग पीरियड में नहीं होगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं होगा। If it doesn't take place in the shooting period, it won't take place in the broad drama either. आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ईरान समेत बहुत सारे इस्लामिक देशों में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है और खुद हमारे अपने देश भारत में अकेले केंद्र सरकार की मदद से ऐसे लगभग 20,000 मदरसों का संचालन हो रहा है जहां बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जाती है। और यहां बात सिर्फ इस्लाम धर्म की या कुरान की नहीं है। पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ा जाता है और वहां लोग अपने घरों से लेकर होटल्स में, दफ्तरों में, यहां तक कि अस्पतालों में भी मरीजों को बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है, बाइबल रखने के लिए दिया जाता है। हर घर में आपको यूरोप में, पश्चिमी देशों में बाइबल मिलेगा। जो अमेरिका खुद को दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस देश के राष्ट्रपति अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर ही हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो बाइडेन की हैं, जिन्होंने 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर हाथ रखकर ली थी। लेकिन शायद भारत अकेला इकलौता ऐसा देश है जहां रामायण और गीता की बात करना भी सांप्रदायिक माना जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि क्या अमेरिका की तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ रामचरितमानस या गीता पर हाथ रखकर ली जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक गलत धारणा शुरू से बनाकर रखी गई है, जिसमें अपने धर्म की बात करने या धार्मिक ग्रंथों की बात करना सांप्रदायिक माना जाता है, जबकि यह धर्मनिरपेक्षता का जो विचार पश्चिमी देशों से आया वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही है। पहले हमारे देश में परिवारों में, घरों में रामचरितमानस और गीता की प्रतियां रखी जाती थी। हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा, रामायण मिलेगी। लेकिन अब यह संस्कृति समाप्त होती जा रही है और कड़वा सच यह है कि हमारे देश में कई लोग अब भी धार्मिक ग्रंथों को ना तो पढ़ते हैं और ना ही इन्हें अपने घर में कोई स्थान देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं है। गीता प्रेस के मुताबिक वर्ष 1923 से लेकर आज तक यानी 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियों की बिक्री हुई है, जबकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के ही अपने देश में लोग रामचरितमानस और गीता को पढ़ते नहीं। और इसकी वजह यह भी है कि हमारे देश में इसे धार्मिक कट्टरवाद से जोड़कर देखा जाता है और इसे धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आज अगर आप किसी व्यक्ति को मेट्रो में या किसी पार्क में, ट्रेन में, बस में या किसी सार्वजनिक जगह पर गीता पढ़ते हुए देख लें तो उस व्यक्ति को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपको शायद यह लगेगा कि यह व्यक्ति धार्मिक रूप से कट्टर होगा या वो पुराने ख्यालात का होगा और आधुनिक नहीं होगा। लेकिन इसी जगह जब आप उसी व्यक्ति को कोई अंग्रेजी नॉवल पढ़ते हुए देखेंगे, कोई और अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते हुए देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति से बात किए बिना ही उसे बुद्धिमान भी मानेंगे, आधुनिक भी मानेंगे। और यह वही सोच है जिससे हमारे देश में बहुत सारे लोग अपने धार्मिक ग्रंथों का महत्व आज भी समझ ही नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको कानपुर के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लेकर जाना चाहते हैं, जहां डॉक्टरों ने हृदय से जुड़े मरीजों को, हृदय की बीमारियों से जुड़े मरीजों की सर्जरी से पहले
और बाद में रामायण और गीता पढ़ने के लिए दी। और जब इन मरीजों ने गीता के श्लोक पढ़े तो इससे उन्हें अपना मानसिक तनाव कम करने में बहुत मदद मिली। और डॉक्टरों का दावा है कि गीता के उपदेश पढ़ने से इन मरीजों के स्वास्थ्य में एक स्थिरता आई और इनका स्ट्रेस कम हुआ। बड़ी बात यह है कि जब हमारी टीम इस अस्पताल के पेशेंट वार्ड में पहुंची तो हमें ऐसे कई मरीज मिले जिन्होंने कहा कि वो अपने हार्ट की सर्जरी को लेकर बहुत डरे हुए थे, तनाव में थे, लेकिन गीता के उपदेशों ने उनकी सारी उलझनों को खत्म कर दिया, स्ट्रेस को समाप्त कर दिया। और यह अनुभव इस अस्पताल में आने वाले उन मरीजों का भी है जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब आप उसी अस्पताल से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टरों द्वारा दी गई है। और जब हम लोग मतलब पहले ऑपरेशन के पहले डर लग रहा था, जब इसको पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि भाई जो भी है, जो होना है अपने समय पे होगा, तो एक आत्मबल आया। आप भी गीता पढ़ते हैं? हाँ। क्या आपको ऐसी बात उसमें लगती है जो आपको लगता है कि आपको मदद करती है इस पेशेंट सर्जरी? शांति मिलती है, दुनिया की बातों से दूर रहता है आदमी। बस यही पढ़ते रहो, बस यही विचार बनाते रहो, अच्छी चीजें याद आती हैं। पेशेंट्स जब आते हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में, हार्ट के जितने भी मरीज होते हैं जिनका कि बाईपास या वाल्व चेंज होना है, कोई भी छोटी बीमारी को लेके या बड़ी बीमारी को लेके बड़ा ही चिंतित होता है। तो उसी को लेके मन में यह है कि जैसे अध्यात्म, योग और इन सब का हम लोग सहारा लेते हैं कि मानसिक संतुष्टि के लिए अपने घर में गीता या रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो उसी को लेके हमने इस तरह से ये प्रयास किया कि क्यों ना हमारे मरीजों को भी अगर हम इन सब चीज़ों में लेते और वो इंटरेस्ट लेते हैं। और बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि जैसे गीता भागवत घर पे रहने से, क्योंकि वो महाभारत का सूचक है, घर में कलह कलेश होता है। तो यहाँ असमंजस है गुरुजी कि घर में भागवत रखें, गीता रखें कि ना रखें। आज जब हमारे देश में बहुत सारे लोगों में रामायण और गीता को पढ़ने की उत्सुकता नहीं दिखती, अपने घर में रखने की उत्सुकता नहीं दिखती, तब आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनके जीवन पर अभी एक फिल्म भी आई थी, उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी और वो गीता से बहुत प्रभावित थे। इसी तरह मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी गीता से प्रभावित थे और उन्होंने एक बार कहा था कि वो जब गीता को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्हें इसके बाद सब कुछ अनावश्यक और निरर्थक लगने लगता है। और ब्रिटेन के समाज सुधारक डॉक्टर एनी बेसेंट भी भगवत गीता से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसका अनुवाद करके इसकी एक प्रति लिखी। और ये सूची अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबी होगी। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारा धर्म इतना विशाल है कि दुनिया के महान लोगों ने हमेशा इसका अध्ययन करके नई नई खोज की। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे ही देश में कई लोग अपने घरों में रामायण और गीता को नहीं रखते और उन्हें लगता है कि अगर वो रामायण और गीता को पढ़ेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो उन्हें कट्टरवादी और पिछड़ा हुआ मान लिया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा।